کہ شہر قائد کے باسیوں کا انتظار اب ختم ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں ابر کرم نے خوب رنگ جمایا۔ مانسون سیزن کی پہلی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہری بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے باہر نکل آئے۔ کسی نے سموسے اور پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کیا تو کوئی بارش میں نہا کر انجوائے کرتا رہا۔ ابر رحمت کئی جگہ زحمت میں تبدیل ہو گئی۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی کہ الیکٹرک کے 250 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کئی بڑی شاہراہیں زیر آب آ گئی۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کا رنگ بدلتا موسم، پہلے شدید گرمی اور حبس کا راج، پھر شہر پر چھائے بادل خوب جم کر برسے۔ کہیں موسلادھار بارش، کہیں ہلکی رمجھم، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ لانڈی، قائد آباد، کلفٹن، ناظم آباد، کورنگی، احسن آباد میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے اطراف کے علاقے زیر آب آ گئے۔ آیا چندی گڑھ روڈ، بنس روڈ، صدر اور اطراف کے علاقوں میں بھی بارش نے جل تھل کر دیا۔ شارع فیصل PCHS میں بوندا باندی کے ساتھ ہلکی بارش سے موسم تبدیل ہو گیا، جس سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ بارش ہوتے ہی شہری گھروں سے باہر نکل آئے اور ابر رحمت سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ کسی نے پکوڑے اور سموسوں کا رخ کیا تو کوئی من پسند کھانے کے لیے ہوٹل پہنچ گیا۔ کسی نے بارش میں نہانے پر اکتفا کیا۔ بارش کے بعد کئی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ نارتھ ناظم آباد، حیدری، پاپوش، لانڈی سمیت کچھ علاقوں میں شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ پانی جمع ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اولڈ سٹی ایریا، صدر، احمد جناح روڈ، گرو مندر نالہ، طارق روڈ اور متعلقہ علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آپ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بارش کے بعد کے الیکٹرک کا نظام پھر بیٹھ گیا۔ عوام کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 250 فیڈرز بند ہوئے۔ فیڈرز، PMT اور لوکل فالٹ کے باعث کئی علاقوں کی بجلی بند ہو گئی۔ بعد ازاں کے الیکٹرک نے کئی علاقوں میں بجلی بحال کر دی۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کیے۔ سب سے زیادہ بارش پاپوش نگر میں 37 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، کیماڑی میں 25، ماڑی پور میں 23 اور کورنگی میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ قائد آباد میں 12، اورنگی میں 4 اور DHA فیز 2 میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کراچی میں بارش شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی۔ جہاں شہری لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دیے، وہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مختلف علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث ٹریفک جام ہوا تو کہیں گاڑیاں خراب ہو گئی۔ کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ شہر قائد میں برساتی پانی شہریوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ یہ مناظر کسی سیلاب کے نہیں بلکہ آج کراچی میں کچھ دیر تک ہونے والی بارش کے بعد کے ہیں۔ علاقہ ہے نارتھ ناظم آباد، KDH اورنگی، جہاں بارش کے بعد اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ موٹر سائیکل اور کار سوار اپنی گاڑیوں کو بے بسی سے پانی میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کراچی میں ہر بارش کے بعد یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی تو ابر رحمت بھی زحمت لگنے لگتی ہے۔ ناظم آباد، کورنگی اور سائٹ ایریا گلبائی سمیت کئی علاقوں کے شاہراہیں پانی میں ڈوبی نظر آئیں۔ شہریوں نے اس صورتحال کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہیں ہمیشہ بارش کا انتظار رہتا ہے، لیکن بارش ہونے کے بعد پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں کہ الیکٹرک بھی اپنی روایت سے پیچھے نہیں ہٹا اور 2 بوندیں پڑتے ہی کئی علاقوں کی بتی گل ہو گئی، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ جبکہ ناظرین، کراچی میں چند گھنٹے کی بارش نے بلدیہ عثمہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ گجر نالے میں صفائی نہ ہونے کے باعث پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ نالے کی صفائی کافی عرصے سے نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے مزید دیکھیے عائمہ خان کی رپورٹ میں۔ کراچی میں مونسون سیزن کی پہلی موسلادھار بارش، کئی نشیبی علاقوں کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئی۔ گجر نالے کی صفائی کے انتظامیہ کے دعوے کی کلی کھل۔ آج ہونے والی چند گھنٹوں کی بارش کے بعد گجر نالے میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھی تاحال شہر کے برساتی نالے صاف نہیں ہو سکے۔ گجر نالے کی صفائی نہ ہونے سے بارش کے باعث پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ مزید بارش ہوئی تو خدشہ ہے کہ برساتی نالہ اوور فلو ہو سکتا ہے۔ نالوں کے اطراف قائم آبادیاں زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی وقتوں سے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ بارش ہونے کی صورت میں پانی گھروں میں بھی آ سکتا ہے۔ نالے کی صفائی تو کافی ٹائم ہو گیا کہ نالے کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔
نہ اس کو گھیرا کرا جاتا ہے تو یہ گھیری ہو سکتی ہے، مگر یہاں صفائی کرنے کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ اب یہ اگر صفائی نہیں ہوئی نا، اگر اور بھر گیا تو اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے گھر جب یہ دیواریں نہیں بنی ہوئی تھی نا تو گھروں میں پانی تھا کافی، اتنا۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ علاقے میں جلد از جلد نالے کی صفائی کروائی جائے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، وزیر اعلیٰ سندھ ایکشن میں آ گئے۔ کراچی کو اربن فلڈ سے بچانے کے لیے کراچی واٹر کارپوریشن کو منصوبہ تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اربن فلڈنگ سے متعلق اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا کہ واٹر بورڈ اسٹڈی کر کے 6 مہینے میں مکمل پروپوزل پیش کرے۔ کراچی میں نکاسی کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سے گندے پانی اور بارش کے پانی کو آسانی سے نکالا جا سکے۔ مونسون کی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایکشن میں آ گئے، واٹر کارپوریشن کو منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اربن فلڈنگ سے بچنے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی میں اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے واٹر بورڈ منصوبہ تیار کرے۔ کراچی میں نکاسی کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سے گندے پانی اور بارش کے پانی کا آسانی سے نکاس ہو سکے۔ واٹر بورڈ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ٹنل یا انڈر گراؤنڈ سسٹم الگ سے بنانے کا پرپوزل پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے شہر کے پرانے علاقوں میں نکاسی کا سسٹم درست کرنا ہوگا۔ واٹر بورڈ اسٹڈی کر کے 6 مہینے میں مکمل پرپوزل پیش کرے۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ کراچی میں 417 MDG ان ٹریٹڈ سیوریج پانی ہوتا ہے۔ شہر میں 35 MGDS3 اور 35 MGDS ویسٹ کراچی کا ریسائیکل پروجیکٹ کے تحت ٹریٹ کرنے کا پروجیکٹ ہے۔ 100 MGD پانی TP3 اور 120 MGD TP4 کے ذریعے 2024 تک ٹریٹ ہونا شروع ہوگا۔ باتوں میں بات کریں گے کراچی کے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرانے کی تیاری کہ الیکٹرک نے بجلی 5 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست مئی اور جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ درخواست مئی اور جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے کہ الیکٹرک کے مطابق مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 92 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی ہے۔ منظوری سے 10 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر 30 جولائی کو سماعت کرے گی۔ کراچی کی صنعت کاروں کا IPPs کے ساتھ معاہدوں میں کیپیسٹی چارجز تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ صدر کارٹی جوہر علی قندھاری نے واضح کیا کہ ٹیرف سے نہ زندگی چلے گی نہ صنعت۔ انہوں نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ 24 کروڑ عوام ضروری ہے یا 40 خاندان؟ 25% IPPs غیر فعال ہیں جنہیں بجلی نہ بنانے پر بھی 10 ارب روپے ماہانہ ادائیگی کا انکشاف ہوا ہے۔ بجلی استعمال نہ کرنے پر 24 روپے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہماری نظریں لیڈرشپ پر ہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کیپیسٹی چارجز کی عوام سے وصولی ظلم قرار، کارٹی نے IPPs کے جرم میں حکومت کو براہ راست ملوث ٹھہرا دیا۔ صدر کارٹی جوہر قندھاری نے ممبران کے ہمراہ پریس کانفرنس میں IPPs معاہدوں سے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ کہا اب حقائق سامنے آئے ہیں کہ IPPs کا کتنا بوجھ اور کون ادا کر رہا ہے۔ جوہر قندھاری بولے کہ ملک میں 106 IPPs کام کر رہی ہیں، 52% حکومتی، 23% سی پیک منصوبے کے تحت اور 25% نجی شعبے کی ملکیت ہیں۔ جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بھی بل میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ 40 IPPs کو نوازا گیا اور بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ 16.5 یونٹ 16.5 سینٹ کے حساب سے بجلی دی جائے، جو کہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس کمپٹیشن کے دور میں جب گلوبل ولیج میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ بنیادی چیز جو الیکٹریسٹی ہے وہ آپ کا پڑوسی 7 سینٹ میں لے رہا ہے، 8 سینٹ میں لے رہا ہے، آپ 16.5 سینٹ میں لے کے نہیں چل سکتے، اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جہاں پہ عام صارف پہ آ رہا ہے۔ صدر کارٹی نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں 2000 ارب سے زائد کیپیسٹی چارجز وصول کیے جا چکے ہیں اور رواں مالی سال 2100 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ ملک میں 25% IPPs بند ہیں جنہیں ماہانہ 10 ارب روپے کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ مقامی انڈسٹریز، برآمدات اور ملک کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ لاسٹ ایئر ہم نے 2000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں کیپیسٹی چارجز بھی دیے، اور اس سال کا جو تخمینہ ہے نیپرا کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں 2100 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ملک اس وقت جس دہانے پہ کھڑا ہے، کیا ہم بغیر استعمال کرے بجلی خالی کیپیسٹی چارجز میں ان کو
26-2100 अरब रुपए कहाँ से लाके देंगे? काटी मेंबरान ने कैपेसिटी चार्जेस की आवाम से वसीले को जुल्म करार देते हुए इसे खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन हैदर के साथ अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने KMC को पुरानी एयर कंडीशन बसें चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद बसें शामिल करने की हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी वज़ीर आला ने कहा कि नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC ने गुज़िश्ता दौर में CNG बसें खरीदी थी। KMC 28 बसें देने के लिए तैयार है, जिन्हें मुरम्मत के बाद नुमाइश से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक चलाया जा सकता है। प्रिया कुमारी के वालिदैन और मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार PP इक़लियती NPAs की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हुई। DIG जावेद जिस्कानी की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़ियाउल अंजार ने बताया कि प्रिया कुमारी के जिंदा होने के शवाहिद हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि प्रिया कुमारी के वालिदैन और मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आला हाउस आमद है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार PP इक़लियती MPBS की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हुई। DIG जावेद जिस्कानी की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन अंजार ने बताया कि प्रिया कुमारी के जिंदा होने के शवाहिद हैं। अदालत ने वालिदैन की दुहाई सुन ली। फैमिली कोर्ट शर्की ने दुआ ज़हरा को मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। कराची से कमसन लड़की दुआ ज़हरा कासमी को अगवा के बाद मुबैना शादी का केस में अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती, बच्ची मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के साथ रहेगी। बच्ची की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए हकीकी वालिदैन के हवाले किया जा रहा है। अदालत ने वालिदैन को 2 लाख रुपए के ज़ाती मचलके भी जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बच्ची के तमाम ज़रूरियात, तालीम, खुराक वगैरह का ख्याल रखा जाए और बच्ची को जब भी अदालत तलब करे पेश करना होगा। अनासिर शहर-ए-कायद में जराइम ना थम सके। शेरपाव कॉलोनी मौला मदद कब्रिस्तान के करीब नाले से बोरी बंद 6 साला जिंदा बच्ची बरामद हुई है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी का कहना है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं, इसका मेडिकल करवाया जा रहा है। एरिया के स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। तसलसल थाना कायदाबाद की हुदूद शेरपाव कॉलोनी में नाले से बोरी बंद 6 साला जिंदा बच्ची बरामद। SSP मलिर काशिफ अब्बासी का कहना है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं, इसका मेडिकल करवाया जा रहा है। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। कोरंगी सेक्शन में तैनात ट्रैफिक एहलकार ASI महमूद डकैती की झूठी कहानी। बेनकाब कोरंगी पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। ट्रैफिक एहलकार ने अपने बयान में डकैती की वारदात का वाकया झूठा करार दे दिया। वसाइल और तादाद कम होने के बावजूद डॉक्टर्स दुखी इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। पीपल्स डॉक्टर्स फोरम कराची के सदर आशिक हुसैन कहते हैं कि काम करना मुश्किल हो गया है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर सेहत डॉक्टर्स की भर्ती और तरक्कियों समेत दीगर मसाइल हल करें। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। वसाइल और तादाद कम लेकिन इंसानी खिदमत पूरी। डॉक्टर्स दिन रात काम करने लगे। पीपल्स डॉक्टर फोरम कराची के सदर आशिक हुसैन कहते हैं डॉक्टर्स की तादाद कम होने के बावजूद वो दिन रात दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। हालात कैसे भी हों, डॉक्टर्स ने हर हाल में काम किया। डॉक्टरों की शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है। आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी डॉक्टर्स बिरादरी ने कोविड में सिंध में कितना काम किया था, उसके बावजूद भी अभी ये देखो आप हीट स्ट्रोक में डॉक्टर्स बिरादरी कैसे काम कर रही है। डॉक्टर आशिक हुसैन ने बिलावल भुट्टो और सूबाई वजीर सेहत से भी अपील की कि डॉक्टर्स की भर्तियों और तरक्कियों समेत दीगर मसाइल हल किए जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलदारी साहब से और अदी फरियाल टालपुर से और उसके साथ साथ CM सिंध से और मिनिस्टर हेल्थ से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी करके डॉक्टर्स की जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है और प्रमोशन टाइमली है और उसके साथ साथ उनकी मैनेजमेंट काडर जो है उसमें जो है ना वो मैनेजमेंट काडर में नए लोगों को इंडक्ट किया जाए। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन अजलान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का किताबों की बरवक्त फराहमी का दावा अधूरा रह गया। रवां साल भी उर्दू बाजार में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें वक्त पर ना पहुंच सकी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में।
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की गफलत, हुकूमत की अदम तवज्जो, सैकड़ों तलबा और तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रवां साल भी उर्दू बाजार में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें दस्तयाब नहीं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का किताबों की बरवक्त फरहमी का दावा अधूरा रह गया। नए तालीमी साल का आगाज होने में चंद रोज बाकी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की बरवक्त फरहमी नहीं की गई। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन साजिद यूसुफ कहते हैं कि हर साल इस मसले पर आवाज उठाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मकसद ये देखना नहीं चाह रहे कि हमारे 1,16,00,000 तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लग गया है और इसी तरह ये परेशानी बढ़ती जा रही है। हम तो कह के थक गए, हर साल की तरह आवाज़ उठा के थक गए कि भाई ये किताबें जो हैं बाइफिकेट कर दें। जब तक किताबें बाइफिकेट नहीं होंगी ये परेशानी कभी भी नहीं ख़त्म होगी। उर्दू बाजार में भी किताबों की किल्लत। दुकानदार कहते हैं हर साल 9वीं 10वीं जमात की किताबों का रोना होता है। इस साल भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तालीमी आगाज से कबल कभी किताबें फरहम नहीं की। हर साल शॉर्ट होती हैं किताबें। 9 की केमिस्ट्री की किताब है, 3 से 4 महीने हो गए अभी तक शॉर्ट है। और भी कंप्यूटर की किताब है और बहुत सारी किताबें। 9-10 की हर साल का ही मसला है ये। साल शुरू हो जाता है उसके भी 1.5-2 महीने बाद किताबें आ रही होती हैं। पेरेंट्स दूर दूर से आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई सरजानी से आ रहा है, मगर उनको किताबें नहीं मिलती। मौसम गर्मा की छुट्टियों का वक्फा मिलने के बावजूद किताबें सरकारी तालीमी इदारों तक ना पहुँच सकी। सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तलबात का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। कैमरामैन वाहिद खान और साथी रिपोर्टर फरहान खान के साथ आइमा खान, सिटी 21। और भी खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। बात करेंगे औरंगी टाउन का पानी हाइड्रेंट माफिया को मुंतकिल कर दिया गया। रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक कहते हैं कि आवाम को टैंकर खरीदने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसा नवासी की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन के आवाम पानी को तरस गए। वाटर टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक कहते हैं हब डैम के करीब होने के बावजूद औरंगी टाउन को लाइनों में पानी नहीं दिया जा रहा। औरंगी का पानी हाइड्रेंट को दे दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम हो चुकी है। यकीनन आप लोग भी जानते हैं, मीडिया पर्सन सहाफ़ी हजरात भी जानते हैं कि औरंगी टाउन की आवाज़ को बारहा असम्बली के फ्लोर के ऊपर बुलंद किया गया, चाहे वो वज़ीर आला से बात करनी हो, वज़ीर बल्दियात से बात करनी हो या फिर वाटर बोर्ड के जो अफसरान बाला हैं, MD हैं, फिर CEO उनसे बात करनी हो। उनको बार बार अपना नोहा औरंगी टाउन का सुनाया गया कि औरंगी टाउन के लोग पानी के बूंद बूंद से तरस रहे हैं। हब डैम बिल्कुल करीब होने के बावजूद औरंगी टाउन के लोग एक एक कतरे के लिए तरस रहे हैं। और जो टैंकर माफिया है, आज औरंगी टाउन के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि लाइनों में 2 माह में एक बार पानी आता है। महंगे दामों पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत मुसीबत से पानी जुगाड़ हो रहा है। जाकर डब्बा में भर भर के लेके आ रहे पंप से। टैंकर अभी 5,000, 6,000, 7,000 टैंकर मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। पानी के तो यहाँ से काफ़ी अर्से से शिकायत है। 2 महीना 2.5 महीने के बाद पानी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। आता भी तो आधा 1 घंटे के लिए आता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता पानी। टैंकर के लिए 2 दिन लाइन लगाना पड़ता है। टैंकर बर वक्त नहीं मिलता, वो भी मिलता है 4,500, 5,000 रुपये फी टैंकर है। औरंगी टाउन के रिहायशी कहते हैं कि उनके हिस्से का पानी उन्हें फराहम किया जाए, बसूरत दीगर वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर का घेराव करेंगे। कैमरामैन इमरान AK के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम एक मरतबा फिर कराची चैम्बर पर बरस पड़े। कहा कि जुबैर मोतीवाला मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाते। उन्होंने फ्लोर मिल सिंध जोन के चेयरमैन से भी कराची चैम्बर की मैनेजिंग कमेटी छोड़ने का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर सो रहा है, ताजरों की दाद रसी नहीं करता। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम फट पड़े। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ अशराफिया के लिए बनाई गई है। जुबैर मोतीवाला मसाइल पर आवाज नहीं उठाते। ना वो बिजली के लिए आवाज उठाते हैं, ना पानी के लिए, ना आटे के लिए, ना दवाइयों के लिए, ना कोई बच्चों के दूध के लिए। चैम्बर से कोई उम्मीद ना समझें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ इलीट क्लास के लिए बनाई गई है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने फ्लावर मिल्स के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला को चैम्बर की मैनेजिंग कमेटी को छोड़कर इस्तीफा देने का मुतालबा किया। चैम्बर्स ने फ्लावर मिल्स की भी दाद रसी नहीं की। खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान और इस कराची पे रहम खाएं, आवाज बुलंद करें।
खुदारा आवाज बुलंद करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोई हुई है, आवाज बुलंद करें। और मैं चौधरी आमिर साहब से दरखास्त करता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजिंग कमेटी से इस्तीफा दें फौरन। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का कहना था कि फेडरेशन आवाज बुलंद करता है मगर कराची चैम्बर सिर्फ अशराफिया को सपोर्ट करता है। काविश मेमन, सिटी 21। कराची के लिए MQM, जमात इस्लामी और PTI एक पेज पर हैं। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का इंकशाफ, कहते हैं कि पॉलिसी साज इदारे गलत टैक्स पॉलिसी की तरफ मईशत को ले जा रहे हैं। तफसीलात हम जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की टावल मैन्युफैक्चरर्स के दफ्तर में एक्सपोर्टर से मुलाकात। एसोसिएशन सिंध बलोचिस्तान के चेयरमैन सैयद उस्मान अली और दीगर अरकान ने हुकूमत के इम्तियाजी सलूक से फारूक सत्तार को आगाह किया। फारूक सत्तार का कहना था कि हमारे पॉलिसी साज अदारे जो मईशत के शोबा को देख रहे हैं, गलत टैक्स पॉलिसी की तरफ मईशत को लेकर जा रहे हैं। सारी जिम्मेदारी करते हैं ना, फिर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर डाल देते हैं, जिसमें ताजिर भी हों, ताजिर भी रिकनसाइल करें, सनतकार भी करें और उसमें जागीरदार और वडेरे भी शामिल हों, उन्हें भी जिम्मेदार बनाएं कि भाई 22 से 25% GDP में आपका कंट्रीब्यूशन है और आप टैक्स 1% देते हैं। तो इस नाइंसाफ़ी और इस मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेशन से तो फिर मुल्क और कौम आगे नहीं बढ़ेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क की इंपोर्ट $75 अरब और $30 अरब की एक्सपोर्ट है। फिर IMF और दीगर अदारे खसारे की ज़रूरत पूरा करते हैं। आलम यह है कि टैक्स देने वाला कराची लड़खड़ा रहा है। कराची की अहमियत अगर आपके बजट की पॉलिसी में और माशी पॉलिसी में अगर कराची ऊपर नहीं नज़र आएगा आपको, तो फिर क्या है कि हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। मुलाकात में फारूक सत्तार ने एसोसिएशन के अहदेदारों और एक्सपोर्टर्स को वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने आवाम को दरपेश मसाइल का हल बता दिया। कहा कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और ग़ुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। आवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। FPCCI में तकरीब से ख़िताब में बोले कि हमारे मुल्क को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सरदमहरी है, हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। कायम मकाम सदर FPCCI सूद से पाक इस्लामिक और बैंकिंग निज़ाम कायम करने के ख्वाहिशमंद साकिब फयाज मग्गू का कहना था कि मॉडर्न निज़ाम को इस्लामिक निज़ाम के साथ जोड़ना होगा। तफसीलात के लिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। विफाक ऐवान हाय तिजारत और सनत पाकिस्तान में ताजिर और सनतकारों से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी की मुलाकात। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब। कहा इंतखाबात पर इंतखाबात होते चले जाते हैं और हर इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं और फिर इलेक्शन का मुतालबा होता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के हर शोबे में मगरब को आइडियल बना लिया गया है। हम IMF के गुलाम हैं और IMF के बगैर नहीं चल सकते। इस गुलामी के नतीजे में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज है। अगर एक ट्रैक था तो एक ही ट्रैक है, उससे आगे नहीं बढ़ सके। और जो कुछ हो रहा है वो वेस्ट के इदारों के मातहत हो रहा है। IMF के हम गुलाम हैं। उसी IMF की गुलामी ने आज यहाँ तक नौबत पहुंचाई है कि हमारा बच्चा लाखों रुपए का मगरूज पैदा होता है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर का कहना था कि सूद के निज़ाम को अल्लाह ताला ने जंग करार दिया है, तो हम कैसे मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। ताजिर और आवाम फैसला कर लें कि इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी तो इम्पोर्टेड मसनूआत बंद हो जाएंगी। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और ग़ुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। आप कहते हैं कि नहीं, इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाओ ताकि तुम्हारे पास ज़र-ए-बादला तुम्हारा बाहर जाए। ये शर्त IMF लगा रहा है। तो सरकारी सतह पर अगर इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई जाती है तो आलमी इदारे बीच में आकर रुकावट डालते हैं। FPCCI के कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मंगू ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि सूद से पाक इस्लामिक और बैंकिंग निज़ाम को कायम करें। इस्लामी निज़ाम ही बेहतर निज़ाम है। कहा कि मॉडर्न निज़ाम को इस्लामिक निज़ाम के साथ जोड़ना है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में स्पोर्ट्स आरीना का रुझान बढ़ने लगा। क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में
सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन की जानिब से स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। शहर के नौजवानों को खेलों की तरफ रागिब करने का मिशन। इंडोर क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ गई। क्रिकेट के दीवाने अब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इंडोर क्रिकेट से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। ऑर्गेनाइजर जावेद झांगा कहते हैं, इस अरीना को खोलने का मकसद है कि यूथ खेलों में अपना वक्त लगाए। मेरी कोशिश है अच्छे टैलेंट वाले खिलाड़ियों को बैरूनी मुल्क भी लेकर जाऊं। ये ग्राउंड जो है अपना इसको अपनी खुद सेल्फ फाइनेंस पे लिया है और मेरा ये विज़न है कि मैं यहाँ जो है बच्चों को स्पोर्ट में इन्वॉल्व करूँ और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के बाद मेरा प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने का। मेहमान खुसूसी सैयद मखदूम अली रियाज का कहना था, आज के दौर में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है तो बच्चों के लिए जबरदस्त स्पोर्ट्स अरीना बनाया है। जावेद झंगड़ा साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया और ये स्टेडियम का जो है उन्होंने आज संगे बुनियाद नहीं रखा बल्कि आज ओपनिंग कर दी है। इससे नौजवानों को खेल की तरफ रुझान बढ़ेगा और उनको मौके मिलेंगे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए। अब नाइट क्रिकेट मैचेस सड़कों, गली, महल्लों और मैदानों के बाद छोटी जगह पर जरूर हो रहे हैं, लेकिन महफूज और पुरसुकून माहौल में नेट के अंदर लाइटिंग के साथ नौजवान क्रिकेट खेल सकते हैं। कैमरामैन रमीज इब्राहिम के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने जानी और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।